Hi, good evening to all. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Uh, so yesterday we discussed three units of MVE 005, and today is unit 4. Yesterday we discussed various things regarding management skills, professional managers, and what are their tasks, what are their responsibilities. So today we will discuss one more thing, that is planning. And planning is very important to forecast the future of firm and organization, to set the objectives, and to how to achieve these objectives. So planning is important and everywhere, even in day-to-day life, planning is very important, but it is a kind of firm and business entity. So it's become more important because by planning, a manager has to plan for their profit, for the further growth, further enhancement of the organization. So planning is important. So first we will discuss more about the planning. Yes, the planning take place everywhere. If we take the even family matters, if we take the society matters, if we take the firm and organization matter, it is very important. If you talk the managerial role for planning, so it's become more important because we are firm organization, and most important, which is known as client and customer. So to reach the customers, planning is very important. So let us discuss what it is in this unit. So first of all, there are four objectives in this unit. We will be aware what is the managerial process of planning, various methods of formulating plan, understanding the planning framework, what is the planning framework, and little insight the planning practices in Indian enterprises, means जो भारतीय की जो अपनी संस्थाएं हैं, जो इंटरप्राइजेस हैं, उसमें किस तरह की प्लानिंग प्रैक्टिसेस अभी चल रही हैं, उनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट we take planning. What is planning? So planning is a household word today, as I discussed, because it is taking place everywhere. Perhaps there is no sphere of activity where planning is not used in this, in one context or in other these days. Though the planning is an instrument of aiming at future, has been a vogue in business since a long time. It's used at the micro level for the gearing up the operations of governments towards the attainment of certain targets of uh, recent origin. Even you must have the 5-year plan of government. So this is regarding for the development, what we will achieve in the 5 year. Means planning is a kind of targeted activity. By achieving these many years, we will achieve this goal and that goal.
So that is plan. So plan, if we take one example, our 5-year plan are an example of micro level planning for the achievement of target aimed at increasing the standard of living of our people. जैसे मैंने बताया कि भारत सरकार भी बहुत सारे 5-year प्लान बनाती है, जिसके जो हमारी जो भारत की जो जनता है उसको किस तरह से स्टैंडर्ड लिविंग प्रोवाइड कर सकें. So planning does mean having a view of the future and deciding in advance where we would like to be. हम आने वाले समय में कहाँ होंगे और उसको हमें किस तरह से अचीव करना है, इसके लिए प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट. 1 second. So planning starts with the definition of the objective and the formulation of specific goal. Means देखिए प्लानिंग गोल, पहले हम लोग गोल डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं और उसको किस तरह से अचीव करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग. द वे ऑफ अचीविंग द टारगेट एंड गोल. Planning is essential, concerned with the future. Planning is linked with future, क्योंकि इन फ्यूचर में हम लोग क्या क्या अचीव करने वाले हैं. By forecasting the needs of business firm and organization. And you know the planning is done by manager at all level. It is not true that it is applicable at higher level. It's take place every level, middle level, top level, and even down the line. So it's take every place in firm and organization. Planning is a means to some end. As such, involve choice among alternative goals, alternative programs. प्लानिंग देखिए एक जगह एक ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग डिफरेंट हो सकती है, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग डिफरेंट हो सकती है. इट डिफर पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट. What alternate to choose give rise to decision making which every manager will be required to do. Do you plan for a day? How do you plan for a year? Means planning में everything is involved. मनी कहाँ से आनी है, उसको किस तरह से स्पेंड करना है, हाउ मेनी डेज आर फॉर वर्किंग, कितने वर्किंग पीरियड होंगे, कितने वेजेस अपने एम्प्लॉय को देंगे, कितनी और सुविधाएं देंगे लाइक क्रच एंड ऑल या दिस फर्स्ट एड और काइंड ऑफ लिटिल डिस्पेंसरी. सो ये सब प्लानिंग का पार्ट है और उसमें मेल फीमेल का रेशो, मेल के अकॉर्डिंग क्या क्या नीड्स होनी चाहिए फर्म ऑर्गेनाइजेशन में, फीमेल के अकॉर्डिंग क्या क्या नीड्स होनी चाहिए. इट्स ऑल comes under the planning. If you have if you have given thought to above questions, you must have sensed the need for planning. Means किस तरह की planning होनी चाहिए and any activity whatsoever. Planning is considered important because planning क्यों important है इसको जरा हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. Attempt to offset uncertainty by forecasting the future and bringing about the preparedness for the happening in future. Means आप भविष्य के लिए क्या आप फोरकास्ट कर रहे हैं अपनी फर्म का और उसको किस तरह से आपको तैयार रहना है उसके लिए. इसके लिए हमें प्लानिंग की जरूरत है ताकि फ्यूचर में कोई हम लोग मिस्टेक ना कर सकें या मिस्टेक को मिनिमाइज कर सकें.
दूसरा, फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल। जो कंपनी के, फर्म के, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको किस तरह से हम लोग अटेन कर सकते हैं, उनके बेस पे हम लोग प्लानिंग करते हैं एज ए मैनेजर। लीड्स टू इकोनॉमी इन ऑपरेशन डू द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। इकोनॉमी को भी हमें ध्यान रखना है, उसका फ्लो ऑफ मनी भी हमें ध्यान में रखना है, उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट वी कैन अचीव। हेल्प टू कंट्रोलिंग एड एक्टिविटीज, जैसे कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, कुछ सोशल भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं, कुछ पॉलिटिकल भी होते हैं, उन सबको हमें डील करना है बाय वे ऑफ प्लानिंग। हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द ऑपरेशन, डिफरेंट काइंड के ऑपरेशंस होते हैं एक ही फर्म में, उन सबको कोऑर्डिनेशन के लिए भी प्लानिंग की जरूरत है। सो एज ए होलिस्टिक व्यू, द प्लानिंग टेक प्लेस टू do the activity in better way or best way to achieve maximum in output or maximum profit. Whatever we do, that comes under the planning. प्लानिंग, यहाँ हम दो तरह की प्लानिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे, एक है स्ट्रेटजिक, एक ऑपरेशनल। स्ट्रेटजिक काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, और ऑपरेशनल किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं, यानी शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो करते हैं उसको हम ऑपरेशनल प्लानिंग बोलते हैं। या स्ट्रेटजिक प्लानिंग इज आल्सो नोन एज लॉन्ग रेंज प्लानिंग, मीन्स लंबे समय के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं उसको स्ट्रेटजिक प्लानिंग कहते हैं। इट हैज टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। फर्स्ट, इट्स कवर्स ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विच मे एक्सटेंड फ्रॉम 5 to 20 एंड मोर ईयर्स। हम लोग जो अगर डेवलपमेंट से रिगार्डिंग जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रेंज प्लानिंग होती है, जिसको हम स्ट्रेटजिक प्लानिंग कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी प्लानिंग करती है, या कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की जो प्लानिंग करती है, दैट इज कम्स अंडर द स्ट्रेटजिक प्लानिंग। और इवन फॉर ए कंपनी, अगर कोई कंपनी को कोई स्पेसिफिक प्लानिंग करनी है जो पर्टिकुलर समय में या स्मॉल टाइम में पॉसिबल नहीं है टू अचीव दैट, उसको भी हम लोग स्ट्रेटजिक प्लानिंग कहते हैं। और स्ट्रेटजिक प्लानिंग कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर, जितने भी साल, अगर वो 5 years की प्लानिंग हमने स्ट्रेटजिक की है और जब तक अचीव नहीं होगा उसको हम, जैसे सपोज करिए अगर हम इन प्रेजेंट टाइम इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू बी ए डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, उसके लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं दैट इज स्ट्रेटजिक प्लानिंग, क्योंकि उस टारगेट को, उस गोल को हमें अचीव करना है, उसको 1-2 साल की प्लानिंग में अचीव नहीं किया जा सकता, उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग रेंज प्लानिंग की जरूरत है। सो दैट इज नॉन एज स्ट्रेटजिक प्लानिंग। द सेकंड इज ऑपरेशनल प्लानिंग, या इसको टैक्टिकल प्लानिंग कहते हैं, शॉर्ट रेंज प्लानिंग भी कहते हैं। यूजुअली एक्सटेंड ओवर ए पीरियड ऑफ 1 year और एंड इज मोर डिटेल। ये छोटी सी 1 year के लिए कोई प्लानिंग करते हैं और उसको फर्दर 1 साल के लिए, और क्योंकि जो हम कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन है उसको हमें अचीव करना है, और उसके लिए जो भी हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं उसको हम लोग ऑपरेशनल प्लानिंग बोलते हैं। इन दोनों में एक डिफरेंस देखिए, नीचे टेबल के थ्रू भी इसमें बताया है। Sorry, the following table explain the distinction between operational and strategic planning. First of all, with reference to focus, this operational planning ऑपरेटिंग प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम से उनके ऑपरेट करती है, और स्ट्रेटजिक प्लानिंग लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये जो जिसका जो फोकस होता है वो सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट होता है। ऑब्जेक्टिव्स प्रेजेंट प्रॉफिट्स लेना है, और जो हमारी जो स्ट्रेटजिक होती है फ्यूचर प्रॉफिट हमें कितना मिलेगा। कंस्ट्रेंट में प्रेजेंट रिसोर्स एनवायरनमेंट जो कंस्ट्रेंट होते हैं, यानी कि जो हमारी जिस भी जगह हमारी फर्म ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से अगर कोई एनवायरमेंटल अगर कोई कंस्ट्रेंट है तो वो हो सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में जो फ्यूचर रिसोर्स होंगे, इंटरवेंशन ऑफ आईटी होगा, या अभी अब नया टर्मोलॉजी तो बहुत पुराना, बट नाउ इट इज डूइंग इज वेरी बिग वे, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का और एक्सटेंडेड फॉर्म आने वाले समय में आएंगे, तो ये हमारे लिए कंस्टेंट हो सकते हैं और उनको हमें ध्यान में रख करके प्लानिंग करनी चाहिए। रिवार्ड्स, एफिशिएंसी एंड स्टेबिलिटी रिवार्ड्स के रेस्पेक्ट में, और अगर हम बात करें कि इसकी स्ट्रेटजिक की, तो डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल, यानी हमारे पास कितना पोटेंशियल होगा फ्यूचर में फॉर द डेवलपमेंट। ये थोड़ा सा इनको पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट बिजनेस के बारे में बात करते हैं हम। स्ट्रेटजिक में फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हमें मिलेंगी।
ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक और स्टेबल हो सकता है। यहाँ इंटरप्रेन्योरियल होगा, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और फ्लेक्सिबल होगा। लीडरशिप यहाँ चूंकि वो बहुत कम समय के लिए, इसको कंजर्वेटिव है, लेकिन यहाँ पर रेडिकल चेंज होते रहेंगे टाइम टू टाइम, और उसका फर्दर एक्सटेंशन भी होता रहता है। इफ यू टॉक अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग इन बोथ प्लानिंग, सो रिएक्ट रिलाइज ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। जो भी जो ऑपरेशन होते हैं, हम पुराने जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उनके ध्यान में रखते हुए हम लोग प्लानिंग करते हैं। लेकिन एज फार एज दिस स्ट्रेटजिक, फ्यूचर में हमें क्या क्या हमें और अचीव हो सकता है, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी हैं, या फ्यूचर हमें क्या रिस्क हमें हो सकते हैं, उसको ध्यान में रख के स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग में। बट किसी भी तरह की प्लानिंग हो, वेदर इट इज ऑपरेशनल और इट इज स्ट्रेटजिक, इस तरह इन प्लानिंग को हम किस तरह से प्लान करते हैं, फॉर्मुलेटिंग प्लान को हम पढ़ लेते हैं। So preparing a plan is a step-by-step exercise. It is not just a kind of literature. It is a step-by-step, means there are many steps to achieve a plan. उसमें कौन कौन से steps होते हैं उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है perception of opportunities, means किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास फर्म में, या किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हमको पानी है। फिर उसके बाद में गोल डिसाइड करते हैं, किस क्या क्या गोल हो सकते हैं हमारे प्लानिंग के, यानी हमें क्या अचीव करना है, बेसिकली वो गोल सेट करते हैं और उस गोल के अकॉर्डिंग हम लोग प्लानिंग करते हैं। अप्रेजल ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस, उसमें जो प्लानिंग है उसका मीन्स दायरा कितना है, हम उसको क्या क्या हम कौन कौन लोग उसमें काम करेंगे, कौन कौन लोग उसमें सपोर्ट करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स होगी, टेक्नोलॉजी होगी, उन सबको ध्यान में रख के हम लोग प्लान करेंगे। एक्सप्लोरिंग ऑफ एक्शन पार्ट, कौन सा पार्ट हम लोग लेंगे, कौन सा हम सिलेक्शन करेंगे, कौन सा हम एक्शन लेंगे। तो 4 इंपॉर्टेंट आपकी एक्टिविटीज हैं कोई भी प्लान फॉर्मुलेट करने के लिए, जो हमने अभी बात की। इसको आगे चलते हैं। दिस इज ओके, देन व्हाट इज नेक्स्ट, या as previously stated, planning rests on premises about the expected environmental condition. Yes, such premises are classified business, environment and internal. वो चूंकि हम इसमें लास्ट कल भी हम बात किए थे कि प्लानिंग दो पार्ट पर होती है। एक तो इंटरनली हमें कुछ प्लान करना है, तो एक्सटर्नली। इंटरनल में हमारे जैसे बहुत सारी चीज हमने कल डिस्कस की, हमारे इंटरनल में हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, हमारी पॉलिसीज हैं, हमारे टारगेट्स हैं, और हमारे जो प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो हमारा एक टारगेट है, और जो हमारे जो कॉस्ट है, कॉस्ट कम लगे, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, दीज आर द इंटरनल थिंग्स। एक्सटर्नल में आपने देखा होगा, जब हम कल बात करें तो सोशल चीज़ें हैं, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं, यानी कि हमें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी मिलेगा हमें, और हमें कुछ सोशल जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल में आती हैं। तो इन दोनों चीज़ों को, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों को ध्यान में रख करके हमें प्लानिंग करनी है। तो पहले सबसे पहले हम बिजनेस एनवायरनमेंट को जानें, जो एक्सटर्नल के रूप में काम करता है कि व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू द टोटलिटी ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस दैट अफेक्ट द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये इस पर हमने कल भी चर्चा की थी कि ये पैसा कितना आ रहा है, पॉलिटिकल कोई प्रेशर है, सोशल, अगर कल भी हमने जिक्र किया था कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट ना लेवलिंग ना करें जिसमें हमारा सोशल जो हमारे बिलीफ हैं, फेथ्स हैं, वो हर्ट करें। कल्चरल के अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोडक्शन करना है, उसको भी ध्यान में रखते हुए। टेक्नोलॉजिकल, किस टाइप की टेक्नोलॉजी हम यूज करनी है, ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। सिंस द एनवायरनमेंट इज प्राइमरी लुक्ड अपॉन द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, हो गया है। ऑन द अदर हैंड, पॉलिटिकल instability has to undesirable impact on the plan of the business enterprises capital investment committee। ठीक है, बिजनेस जब हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आएगा, शेयर होल्डर से आएगा या डिबेंचर से आएगा, या फिर आजकल जो आईपीओ, टाइम टू टाइम आईपीओ निकलते हैं, उसमें जो लोग खरीदते हैं पैसा वहां से आता है। इनको पैसे को किस तरह से खर्च करेंगे
उसके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो सेमी प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या फिर कोई बिजनेस फर्म हो, हर जगह कैपिटल इन्वेस्टमेंट कमेटी होती है जो मनी के फ्लो को या बिजनेस के फ्लो को देखती है, मॉनिटर करती है और टाइम टू टाइम में पॉलिसीज बनाती है और सजेशन देती है फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट को कि इस आज की जरूरत ये है और अकॉर्डिंगली हमें इसमें नया प्लान करने की जरूरत है। वैल्यूज एंड पॉलिसीज ऑफ टॉप मैनेजमेंट, जब हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कमेटी जो भी सजेशंस करती है उनको उन पॉलिसीज, उन पर जो टॉप मैनेजमेंट है वो पॉलिसीज फ्रेम करती है कि क्या गुड है, क्या सही नहीं है। यही है ये समरी जो हमने आज अभी जो बात की इसमें कि किस तरह से हम लोग पॉलिसी प्लान करते हैं। चलिए, इसके बाद ये कल की यूनिट का ही पार्ट था, कल की बेसिकली ब्लॉक का पार्ट था। एक ब्लॉक में 4 यूनिट होती हैं, तो अभी हम थोड़ा सा नया जो सेकंड ब्लॉक है वो शुरू करते हैं विद इन 1 and 2 मिनट। देखिए, डिसीजन मेकिंग भी कल हमने पढ़ा कि किस तरह की डिसीजन मेकिंग है, मैनेजर का क्या रोल है और किस तरह से मैनेजर को डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है फॉर द मैनेजमेंट, फॉर द वर्कर्स, फॉर द क्लाइंट्स, फॉर द सेलर्स, फॉर द डीलर्स। तो कल हमने इस पर बड़ी लॉन्ग डिस्कशन किया। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में डिसीजंस क्या होते हैं या उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन होते हैं। देखिए, इसमें 4-5 एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जो डिसीजन जिससे अफेक्टेड होता है और या ये कहिए कि जिससे डिसीजन ओरिएंटेड होता है। तो 1 इज मिशन, डिसीजन हमेशा मिशन ओरिएंटेड होंगे। डिसीजन हमेशा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होंगे। डिसीजन ऑलवेज गोल्स ओरिएंटेड होंगे। स्ट्रेटजी बेस्ड होंगे डिसीजंस। किस तरह का जो हमारा प्रोसेस है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस होंगे। व्हाट आर द पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिस्कशन होंगे, डिसीजंस होंगे। और उन पॉलिसीज को फ्रेमिंग हम किस तरह से करेंगे तो डिसीजन उसको भी इम्पैक्ट डालेंगे। तो यही हम सब लोग इसके बारे में आज अभी जानेंगे कि किस तरह का ये हम लोग आज जानेंगे कि मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसीज क्या होता है और उसके बारे में मिशन, ऑब्जेक्टिव्स और इनको किस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं और इन सब की क्या इम्पोर्टेंस है इन मैनेजमेंट और इन फर्म, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी टेक मिशन। The mission is very reason and justification for existence of a firm. बिना मिशन के कोई भी फर्म का एग्जिस्टेंस नहीं है। मिशन इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म ऑफ बेनिफिट। जब हम मिशन की बात करते हैं तो उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेनिफिट। मीन्स मिशन ऑलवेज बेनिफिट्स के ध्यान में रखते, क्या बेनिफिट्स हमें होंगे, क्या फर्म को बेनिफिट्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग मिशन डिसाइड किए जाते हैं। बेनिफिट्स द terms of the benefits the firm provide to the customers and not in term of any physical dimensions of the firm or its product। यानी कि हम अपने कस्टमर्स को कौन कौन सा बेनिफिट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर में, इसको ध्यान में रख के जो भी डिसीजन होते हैं उसको हम लोग मिशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है, फर्म एग्जिस्ट एंड फंक्शंस ओनली इन रिलेशन टू द कस्टमर हुज नीड्स it satisfy। if there were no customer there would be no firm।
जहाँ कस्टमर डेफिनेटली यस, जहाँ कोई कस्टमर नहीं होगा वो फर्म कहाँ से होगी? फर्म के लिए कस्टमर होना जरूरी है, और कस्टमर तभी होंगे जब उनको बेनिफिट्स मिलेंगे बाई बाइंग द प्रोडक्ट और बाई परचेजिंग द प्रोडक्ट एंड बाई हैविंग बाई यूजिंग द प्रोडक्ट। तो जब तक उनको बेनिफिट्स नहीं होंगे तब तक वो लोग मोटिवेट नहीं होंगे, अट्रैक्टिव नहीं होंगे टुवार्ड्स द प्रोडक्ट। और जब कस्टमर नहीं होंगे मीन्स देर इज ए नो रोल, देर इज ए नो circumstances, there is no way of firm without customers. So customer is important, और customers को ध्यान में रख करके customers को जो जो benefits देना है उसको ध्यान में रख करके जो भी पॉलिसी फ्रेम होती है that comes under the mission. The firm must ask the question what is our business and what should it be. इसमें देखिए the important things is to identify the not so obvious but the perceived benefits or value which is the customer is actually seeking when buying the product. ये मैंने अभी बताया कि कोई भी अगर कस्टमर है किसी प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है तो सबसे पहले वो बेनिफिट्स देखता है, बहुत सारे प्रमोशनल चीज देखता है। आपने देखा होगा कि एक दो के साथ एक फ्री, या इतने परसेंट इसमें ज्यादा आपको मिल रहा है, या इतने परसेंट इसमें छूट है। ये सब चीजें जो हमारा कस्टमर है वो देखता है, अपना बेनिफिट्स देखता है। तो इन बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए हमें एक सेल हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग 1 मंथ में इतना सेल हमें करना है बाय गिविंग दीज बेनिफिट्स टू द कस्टमर। सो दैट इज अवर मिशन। मिशन के बाद सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव्स। Once the mission and the scope of firm have been defined by the top management, the next logical step is to translate into action. Means जो हमने मिशन हमने डिसाइड किया है उसको किस तरह से हम एक्शंस में लेके आएंगे, उन एक्शंस को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में बांटते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि हमारे इस डिफरेंट एक्शंस होंगे जिससे हमें अपना मिशन अचीव करना है, और डिफरेंट एक्शंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव कहेंगे। This can be done by the breaking down the business mission into the smaller workable objectives for the manager down the line. These objectives relate to the long run and are described as open-ended attributes for maximizing and optimizing. ये जो आपकी जो स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव टर्म्स हैं कि हमें अपना इनपुट हमें मिनिमाइज करें और आउटपुट हमें मैक्सिमाइज मिले। तो छोटे छोटे हम लोग ऑब्जेक्टिव फ्रेम्स करते हैं टू अचीव द अवर मिशन और फैक्ट्री मिशन और फर्म मिशन। सो ये एग्जांपल दिया है किस तरह के हम लोग गोल्स। देखिए कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर सेम, बट नॉट, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस जिसको हम इसमें जानेंगे। गोल्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स एंड आर इंटरमीडिएट time bound target which are necessary for the achievements of the objectives. So जो हम लोग मिशन बहुत बड़ा होता है, होलिस्टिक होता है, उसके मिशन को अचीव करने के लिए हम लोग एक्शन प्लान करते हैं। दीज एक्शन प्लान्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स, और उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के अचीव करने को हम लोग गोल कहते हैं। सो गोल कैन बी डिफरेंट बट मिशन इज वन टू प्रोवाइड द बेनिफिट्स टू द कस्टमर, या फिर टू अचीव द मैक्सिमम आउटपुट, या फिर टू अचीव द प्रॉफिट। सो इस तरह के जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है उनको हम लोग बोलते हैं गोल। हालांकि गोल्स जैसे मैंने कहा है कि गोल्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होते हैं। द गोल्स आर एक्सप्रेस इन वेरी स्पेसिफिक quantitative and qualitative term. All goals have 4 components derived from the objectives which seeks to fulfillment. The second is an index or standard of measuring progress. Progress को मेजर करने में हमें गोल पता चलता है कितना हम लोग अचीव कर चुके हैं, कितना अभी और हमें बाकी है। ए टारगेट और हर्डल टू बी अचीव, अगर कोई टारगेट हमने फिक्स किया है और उसमें कुछ हर्डल आ रहे हैं तो वो भी गोल्स में आता है। गोल से पता चल जाता है कि हमें किस तरह का हर्डल्स आ रहे हैं और हमारा टारगेट क्या है एज पर द ऑब्जेक्टिव। एंड व्हाट टाइम, कितना हमें टाइम लगेगा टू कंप्लीट दिस गोल। तो 4 इंपॉर्टेंट जो ये हैं कंपोनेंट हैं गोल्स के, ये हमें समझने की जरूरत है। These goals are time bound and work oriented, and they are important because they provide a path for converting plan into the individual task.
क्योंकि इंडिविजुअल टास्क इसके लिए चूंकि डिफरेंट डिफरेंट गोल हो गए, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट काम करेंगी उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सो उसमें इंडिविजुअल टास्क बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, उनके एक्शंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें एक मोटिवेशन फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, जो मैनेजमेंट या मैनेजर अपने वर्कर्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट करता है कि इस गोल को हम लोग अचीव करना है, इतने टाइम में करना है, एंड वी कैन अचीव। ये कुछ गोल्स बताए हैं, परसेंटेज मार्केट शेयर बाय प्रोडक्ट, हमें अपना परसेंटेज शेयर करना है, परसेंटेज सॉरी जो शेयर है उसको इंक्रीज करना है, इंक्रीज से हमें, ये सब गोल्स है, छोटे छोटे वेरी स्पेसिफिक गोल्स हैं, और इन सब गोल को अगर मिक्स कर दें दैट बिकम्स मिशन। स्ट्रेटजी, whether we decided goal, whether we decided objective, whether we plan a mission, उस सब को अचीव करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। चूंकि ऑब्जेक्टिव्स हमने बना लिए, बट उन ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से अचीव करना है, मीन्स एक्शन प्लान किस तरह का होना है, दैट इज नोन एज strategy. Having set objectives, the firm now has to work to achieve them. The specific path of action chosen by the firm to achieve its objective is referred as a strategy. जो ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करना है जिस भी एक्शन प्लान से, उसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं। इट इज द फंडामेंटल मीन ऑफ फर्म यूजेज टू ट्राई एंड अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। एनी स्ट्रेटजी दस डिफाइंड हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट। एक स्ट्रेटजी के भी कुछ कंपोनेंट होते हैं, इसको हमें देख लेते हैं। कोई भी स्ट्रेटजी प्रोजेक्ट और मार्केट स्कोप पर डिसाइड होगी, ग्रोथ वेक्टर पर डिसाइड होगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पर डिसाइड होगी, और डिस्टिंक्ट जो कॉम्पिटेंसी हैं उन पर डिसाइड होगी, और साइनर्जी मीन्स 5 जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनके बेस्ड हमारी स्ट्रेटजी होगी। द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड मार्केट इन विच ए फर्म ऑपरेट एंड विच डिफाइंड इट्स लिमिट ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की कितने समय में वो बनेगा और कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, ये सब स्ट्रेटजी का पार्ट है। द चेंज द फर्म प्लान टू मेक इन इट्स प्रोडक्ट मार्केट स्कोप एंश्योरिंग द फ्यूचर ग्रोथ। हम लोग कितना हमें अचीव करना है, हमारी फ्यूचर फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग कितनी फ्यूचर ग्रोथ होगी, उसके अकॉर्डिंग जो एक्शन प्लान करेंगे दैट इज कॉल्ड आज, वो भी स्ट्रेटजी का पार्ट है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हमारे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन फर्म्स सेम प्रोडक्ट एंड मार्केट में काम कर रही हैं, उसमें उनको किस तरह से कॉम्पिटिटिव ना होते हुए अपना ग्रोथ कर पाएं, उसका एक्शन प्लान भी स्ट्रेटजी का पार्ट है। ये सब चीज़ें, हालांकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। अब प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मूलिंग, किस तरह से हमने स्ट्रेटजी समझ लिया कि स्ट्रेटजी एक एक्शन प्लान होता है टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन उसको किस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे। तो पहले होगा एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस। हम अपनी फर्म का इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस करेंगे, जो भी उसमें फैक्टर्स हैं जो उस कंपनी में जो हमने गोल या मिशन रखा है उसको अचीव करने में कौन कौन सी चीज़ें फायदे में, यानी कौन सी चीज़ें पॉजिटिव होंगी फॉर द डेवलपमेंट, और कौन सी चीज़ें हार्डल्स के रूप में हमें आने वाली हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, उनका एनालिसिस हम लोग करते हैं, और उसी के बेस पर फिर स्ट्रेटजी प्लान होगी। जनरेट स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव, अगर सपोज आपने अक्सर सुना होगा प्लान बी, तो कोई भी स्ट्रेटजी एक नहीं बनती है, सेट ऑफ स्ट्रेटजी बनती है। अगर एक स्ट्रेटजी किसी भी समय हमें चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, कोई भी नीड और असेसमेंट के अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटजी चेंज हो सकती है, और उसके लिए हमें सेट ऑफ स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। ये एक देखिए स्ट्रेटजी एनालिसिस दिया है, एक मार्केट, एक प्रोडक्ट है, कुछ करंट स्ट्रेटजी है, लेकिन करंट स्ट्रेटजी के साथ में हम न्यू स्ट्रेटजी भी ला सकते हैं हम लोग। ये एक चार्ट है, करंट प्रोडक्ट इन करंट मार्केट, न्यू प्रोडक्ट इन करंट मार्केट, करंट प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट एंड न्यू प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट। सो इस तरह से हम लोग अपनी स्ट्रेटजी को भी प्लान करते हैं कि अगर हमें करंट सेम आज की जो चल रही है, हमारी जो फर्म चल रही है उसमें सेम मार्केट है, सेम प्रोडक्ट है, कुछ भी नया नहीं है, उस समय हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। अगर हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं करंट मार्केट में, उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। और अगर हम करंट प्रोडक्ट यानी कि जो पुराना प्रोडक्ट है नई मार्केट में लाते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी।
या फिर नया प्रोडक्ट और नई मार्केट, दोनों ही चीज नई है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी। ये सब 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं स्ट्रेटजीज के लिए, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। ये इवेल्युएटिंग द स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव्स मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि एक स्ट्रेटजी सेट होता है, सेट ऑफ स्ट्रेटजी होती है, एक स्ट्रेटजी में होती है, जैसे हम प्लान बी प्लान सी कहते हैं। तो उनको बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी होगी उसको टाइम टू टाइम इवेल्युएट भी करना चाहिए। चॉइस ऑफ इट, जब आपका सेट होगा तभी आप चॉइस कर पाएंगे, उनमें से एक स्ट्रेटजी को ले पाएंगे जो बेस्ट होगी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। इसलिए स्ट्रेटजी एक नहीं होती है, स्ट्रेटजी हमेशा बहुत सारी फ्रेम करनी होती हैं। पॉलिसीज, हमने मिशन को पढ़ा, मिशन इज एक हॉलिस्टिक वो है, अचीवमेंट है जिसको हमें अचीव करना है, उसको लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स को इंडिविजुअली फिर स्ट्रेटजी सेट करते हैं, और स्ट्रेटजी भी एक ना हो करके बहुत सारी स्ट्रेटजी होती हैं पर ऑब्जेक्टिव, उसमें से हम लोग सिलेक्शन भी करते हैं, टाइम टू टाइम चेंज भी करते हैं। लेकिन एक वन मोर इम्पोर्टेंट, पॉलिसीज, पॉलिसीज इंटरनली भी हो सकती हैं ऑफ द फर्म, एंड पॉलिसीज गवर्नमेंट की भी हो सकती हैं फर्म के ऊपर कि किस तरह के आपको अपना प्रोडक्शन करना है और कौन कौन सी पॉलिसीज आपको अपने फर्म में रेगुलेट करनी है। सो पॉलिसीज बेसिकली है क्या? सॉरी, now we shall turn our attention to policies, program and procedures. Before we get into the detailed discussion, it would be helpful if we differentiate these two sets of concept on the basis of their distinguished characteristics. कौन कौन से हैं वो? पहला मिशन है एंड दूसरा है व्हाट इज सेकंड, सॉरी, इसी को पॉलिसीज के अकॉर्डिंग मिशन, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी आर मेनली द कंसर्न ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। यानी कह रहे पॉलिसीज को समझने से पहले हम लोग मिशन, ऑब्जेक्टिव ये टॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। दूसरा, किसी भी मिशन को, ऑब्जेक्टिव को और स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये भी हमें डिसाइड करने की जरूरत है। किस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे मिशन को और अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्टिव, किस तरह की स्ट्रेटजी होंगी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि पॉलिसीज, पॉलिसीज क्या है? जैसे मैंने कहा कि पॉलिसीज काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके फ्रेमवर्क के अंदर किसी भी कंपनी को, किसी भी फर्म को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना मिशन भी डिसाइड करना है, अपना ऑब्जेक्टिव्स भी, अपने स्ट्रेटजीज भी विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो पॉलिसी यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग ही। तो पॉलिसीज आर द सेट ऑफ नॉर्म्स, सेट ऑफ रूल्स under which the company has to run. The company has to for the production and selling and other promotional activities. So ये हो गया आपका पॉलिसीज। पॉलिसी किस तरह से फ्रेम करना है? गवर्नमेंट पॉलिसी को तो फ्रेम करने की जरूरत नहीं, उनको जस्ट एग्जीक्यूट करना है। लेकिन अगर इंटरनल कंपनी को अगर कुछ पॉलिसीज फ्रेम करनी हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ बेस्ट प्रॉफिट एक्टिविटीज, फॉर द बेटरमेंट ऑफ गेटिंग प्रॉफिट एंड गेटिंग, इसके लिए हमें कुछ पॉलिसीज, कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए किस तरह से हम लोग पॉलिसी फ्रेम करेंगे एज ए मैनेजर? while framing the policy, the top management must take into account the following consideration. क्या क्या उनको कंसिडरेशन करना है टॉप मैनेजमेंट को? while objective setting, the strategy designs are outward directed, policies, programs and procedures are more inward directed. मीन्स देखिए, जो आपके बेसिक सिंपल चीज है कि जो स्ट्रेटजीज आपने बनाई है ऑब्जेक्टिव के बेस पर, तो पॉलिसी उसके सेंटर्ड में रख करके बनाई जाती है, क्योंकि उनको किस तरह से अचीव करना है और एक यूनिफॉर्मिलिटी लाने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारा जो डिजाइन है, स्ट्रेटजी डिजाइन है, उसके बाहर हम लोग कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना बनाए जिसको हमें अचीव करने में दिक्कत। फॉर एग्जांपल कि एवरी एम्प्लॉय हैज टू वर्क 8 आवर्स, तो ये एक पॉलिसी बन गई, ये एक कि हर एम्प्लॉय को एक दिन में 8 घंटे काम करना है। इसमें भी पॉलिसी आएगी कि ये एक लंच ब्रेक टाइम होगा। तो ये सब चीजें पॉलिसी बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका एनवायरनमेंट, अगर एक पॉलिसी है कि आपको सुबह 9:30 से शाम के 6 बजे तक ऑफिस है,
ये पॉलिसी इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एवरीवेयर, इट इज चेंजेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप देखेंगे हिली एरियाज में ये टाइमिंग कुछ और हो सकता है कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस का, प्लेन्स एरिया में कुछ और हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली टॉप मैनेजमेंट को प्लानिंग करने से पहले एक बार सोचने की जरूरत है। पॉलिसीज मस्ट इवॉल्व फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस कंपनी को हुए हैं, फर्म को हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग जो फैक्ट्स हैं, जो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल हैं हु आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय देम। सो पॉलिसीज बेसिकली जो हमारा एम्प्लॉय है, जो हमारा वर्कर है, जो हमारा क्लाइंटेल है, उनको कन्वीनियंस प्रोवाइड करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ध्यान रखना चाहिए टॉप मैनेजमेंट को। पॉलिसीज मस्ट चेंज विद चेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, यस टाइम टू टाइम पॉलिसीज चेंज करनी पड़ती है टॉप मैनेजमेंट को, ये भी कंसिडरेशन होना चाहिए। पॉलिसी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होनी चाहिए, और वो सिचुएशनल के अकॉर्डिंग एक्सेप्शनल सिचुएशन में वो चेंज भी होनी चाहिए, और उनको समझने की ज़रूरत है। सपोज करिए 8 घंटे काम तो करना है, डेट इज़ ट्रू, बट इन समर्स 8 घंटे और इन विंटर्स 8 घंटे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वहाँ थोड़ी सी हल्की फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। पॉलिसीज आर बेस्ट इम्प्लीमेंटेड ओनली व्हेन दे आर फुली एक्सेप्टेड बाय द, देखिए जब तक पॉलिसी ऐसी नहीं है कि वो फुली एक्सेप्टेड हो पीपल के द्वारा, एवरी पीपल के, तो वो पॉलिसी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सक्सेसफुली नहीं काम कर पाएगी। सो पॉलिसी शुड बी well accepted by the all workers, all employee, even all the target group. Too many policies governing, बहुत सारी पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिसीज एक पर्टिकुलर चीज के लिए एक ही पॉलिसी हो तो ज्यादा बेटर है। सेट ऑफ रूल्स एंड सेट ऑफ पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अब किस तरह की पॉलिसीज हैं? पॉलिसीज आपके डिफरेंट जो एक्टिविटीज है उनके अकॉर्डिंग पॉलिसी अलग अलग होती है। सपोज मार्केटिंग, जैसे इसमें मार्केटिंग के रेस्पेक्ट में पॉलिसीज अलग होंगी, फाइनेंस से रिलेटेड में पॉलिसी अलग होंगी, और जो पर्सनल मैनेजमेंट में उसके रिकॉर्डिंग पॉलिसीज अलग होंगी। सो पॉलिसीज ऑलवेज फंक्शनल एरिया बेस्ड होती हैं। इसका आपके सिलेबस में मार्केटिंग, फाइनेंस एंड पर्सनल है, तो इसके बेस में आपको पॉलिसीज आपको फ्रेम करनी है एज ए मैनेजर। किस तरह से हम प्रोडक्शन परचेज बढ़ाएं, है ना, ये चार, सॉरी मार्केटिंग है, किस तरह की मार्केटिंग हम लोग करें, फाइनेंस का फ्लो कहाँ से है, किस तरह से फाइनेंस हमें लेना है, और किस जो हमें हमारे ऊपर अगर कर्ज है, उधार है, उसको हमें किस तरह से ट्रीट करना है मिनिमम टाइम। पर्सनल में वोमेंस के लिए कौन कौन सी सुविधाएं हमें देनी हैं, किस तरह से हम रिक्रूट करें वोमेन को, किस पर्टिकुलर काम के लिए रिक्रूट करें। प्रोडक्शन एंड परचेज, कैसे हम लोग जो आपका प्रोडक्शन, गुड प्रोडक्शन करें, क्वालिटी प्रोडक्शन करें, किस तरह से वेंडर सेलेक्ट करें, मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड हम लोग सेट करें, किस तरह का रॉ मटेरियल हमें खरीदना है, ये सब पॉलिसी के फ्रेमवर्क में आती हैं। वन मोर थिंग इज प्रोग्राम, इसको आप पढ़िएगा, चूंकि ये प्रोग्राम्स बेसिकली जिन पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक बहुत डिफरेंट काइंड के असाइनमेंट्स को अगर हम एक साथ जोड़ दें, डेट इज नॉन एज प्रोग्राम। और प्रोग्राम हमेशा पॉलिसीज के साथ लिंक्ड होता है, सिंक होता है। अगर पॉलिसीज हमारी ठीक होंगी तो उसी के बेस में प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम बेसिकली जो डिसीजन हम लोग एज ए मैनेजर हम लोग जो डिसीजन लेते हैं उनको अचीव करने के लिए, तो बेसिकली प्रोग्राम इज नॉट डिफरेंट थिंग, इट इज लिंक्ड विद द डिसीजन, किस तरह के डिसीजन हमको लेने हैं, किस तरह की हमने पॉलिसीज हमने इम्प्लीमेंट की हैं। तो ओवरऑल गैमेट जितनी भी एक्टिविटीज है वो डेट कम्स अंडर द प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो प्रोग्राम आप जो जिस भी उसमें एडमिशन लिए हैं, डेट इज नोन एज प्रोग्राम, मीन्स दिस फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट इज ए प्रोग्राम, और इसके कंपोनेंट को आप देख रहे हैं कोर्स, दीज आर कॉल्ड कोर्स। सेम एग्जांपल है किसी भी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटजी और आपके ये नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, इन सबको अगर हम एक बकेट में रख दें, डेट इज नॉन एज प्रोग्राम्स।
प्रोसीजर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, किस तरह की प्रोसीजर्स बेसिकली स्ट्रेटजी का सिनोनियम्स है। प्रोग्राम्स रिलेट टू शेड्यूलिंग द एक्टिविटीज विच प्रोसीजर्स रेफर टू द स्पेसिफिक मेथड एंड सीक्वेंस बाय विच एन एक्टिविटी हैज टू बी परफॉर्म। तो किसी भी प्रोग्राम को, अगर हमने कोई प्रोग्राम हमने कंपनी में बिल्ड किया है कि इस प्रोसीजर, इस वे में, इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम आउटपुट हम लोग अचीव करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करेंगे, उसको किस तरह से हमें अचीव करना है, दैट इज नोन एज प्रोसीजर। इसमें और क्या है, या सो इसके बाद हम लेके एक नेक्स्ट लेते हैं, वो भी जरा 1 मिनट का ब्रेक लेने के बाद। So this is unit 6. Unit 6 is not complete. Okay, but I downloaded it from. चलिए नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। इस यूनिट में कुछ मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है, कंप्लीट इज नॉट कंप्लीट। 7th यूनिट। सो दिस इज यूनिट 7। मैं कल देखता हूँ यूनिट 6 में क्या प्रॉब्लम है। आज हम यूनिट 7 और 8 2 ब्लॉक खत्म करने का टारगेट हम लोग रखते हैं। तो 7th यूनिट में क्या है, दैट इज डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स एंड प्रोसेस। किस तरह की डिसीजन मेकिंग फ्रेम करते हैं और उसको किस तरह से हम उनको डिसीजन मेकिंग की क्या टेक्निक्स हैं एंड व्हाट आर द प्रोसेस, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। Yes. So in this unit, various techniques involved in decision making. Decision making को हम पहले भी पढ़े हैं कि किस तरह से कोई भी मैनेजमेंट एंड फर्म में जो मैनेजर होता है, who has to take various decision, और डिसीजन मेकिंग के बहुत सारे हम लोग एग्जांपल्स भी हम लोग कल पढ़े, किस तरह की डिसीजन मेकिंग होती है इन रेस्पेक्ट ऑफ कस्टमर, इन रेस्पेक्ट ऑफ वेजेज, इन रेस्पेक्ट ऑफ जो हम लोग जो सुविधाएं हम लोग अपने फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय हैं उनमें, या फिर जो टेक्नोलॉजी का जो इंटरवेंशन हम लाते हैं टाइम टू टाइम, उसके लिए किस तरह की डिसीजन मेकिंग काम करती है। बट ये डिसीजन मेकिंग होती कैसे है, इन डिसीजन मेकिंग को सीधा एब्रप्टली ऐसा नहीं होता है कि कोई भी मैनेजर अपना ऑन डिसीजन ले ले। नो, इन डिसीजंस को लेने के लिए, डिसीजन मेक करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जहां से एक आउटपुट के रूप में कोई चीज निकल के आती है जो डिसीजन कहलाता है। तो उन डिसीजन को ऑब्टेन करने के लिए देयर आर
वेरियस टेक्निक्स, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस हैं, सीमेंटिक्स हैं, नॉर्मल ग्रुपिंग हैं, जिनको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और इन तीनों में, चाहे वो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस हों, सीमेंटिक्स हों या नॉर्मल ग्रुपिंग हो, यहाँ प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाती हैं। और प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद में एक जो थॉट प्रोसेस के बाद जो चीज़ निकल के आती है, उसको आपका जो मैनेजर है वो उसको डिसाइड करता है फिर फर्म में इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसको थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। इस यूनिट में हम लोग 4 ऑब्जेक्टिव हैं जो हम लोग इसमें अचीव करने वाले हैं। नेसेसिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग रीजनेबल नंबर ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। चूंकि डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे एक एक्शंस नहीं होता, बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं। उसमें से कौन कौन से बेस्ट सुटेबल एक्शंस हैं वो डिसीजन मेकिंग डिसाइड करता है। फैमिलिटी विद वेरियस मीन्स ऑफ जनरेटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। उन जो डिफरेंट जो एक्शंस हैं उनमें फैमिलियर होना, किस तरह से फैमिलियर होना, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एंड डिसाइड टू व्हाट एक्सटेंट पार्टिसिपेशन ऑफ अदर इज डिजायरेबल। बाहर के लोगों का कितना पार्टिसिपेशन, कोई डिसीजन मेकिंग समटाइम्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसमें हम लोग एक्सटर्नल मेंबर, एक्सटर्नल पार्टिसिपेशन भी कराते हैं कि वो डिजायरेबल है तो कब है, क्यों है, कैसे है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। डायग्नोज रोड ब्लॉक्स टू इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड डेवलप सम स्ट्रेटजीज टू ओवरकम देम। कई बार डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, रोड ब्लॉक्स आते हैं, और उनको हम ओवरकम करने के लिए कौन कौन से हम लोग एक्शंस लेंगे, वो सब कौन कौन सी स्ट्रेटजीज लेंगे, वो डिसीजन मेकिंग आज के इस चैप्टर में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। तो पहला है टेक्निक्स यूज इन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। किस तरह के डिसीजन मेकिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, जिसको हालांकि मैं हल्का सा आपको आइडिया पहले से दे दिया हूं कि एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, एक सीमेंटिक होगा और एक ग्रुपिंग होगा। उसमें कौन कौन सी चीज इन्वॉल्व हैं। देखिए, पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेट्स। ये इतने सारे आप कोई सा भी डिसीजन मेकिंग के लिए कोई सा भी एक मेथड यूज कर सकते हैं या 2 मेथड यूज कर सकते हैं। इट इज अप टू द मैनेजमेंट। जनरेशन ऑफ ए रीजनेबल नंबर ऑफ गुड अल्टरनेटिव्स इज यूजुअली नो प्रॉब्लम। बहुत सारे अल्टरनेटिव अगर कंपनी के पास, फर्म के पास हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन इट्स टेकन ए गुड वे। Occasionally, however, developing a variety of good alternatives can be a complex matter requiring creativity, thought and study। क्योंकि इसमें टाइम भी लगेगा, क्रिएटिविटी भी चाहिए। अगर बहुत सारे हम लोग अल्टरनेटिव एक तरह से डिसीजन मेकिंग हम लोग करें, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज, इट इज ऑलवेज गुड, बट ऑल्दो इसमें कुछ इश्यूज हैं। जैसे इश्यूज क्या है, इसमें क्रिएटिविटी चाहिए, थॉट चाहिए, स्टडी चाहिए। सो बेटर टू ऑप्ट वन वे, कोई भी एक आप वन वे आप यूज कर लीजिए, चाहे ब्रेन स्टॉर्मिंग यूज कर लीजिए या साइनेटिक्स यूज कर लीजिए या नॉमिनल ग्रुपिंग यूज कर लीजिए। तो पहले हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात करते हैं। बहुत कॉमन चीज मैं बता दूं, अगर 10-15 लोग एक प्रॉब्लम्स को लेकर के आपस में डिस्कस करें, यानी अपने ब्रेन को यूज करें उस प्रॉब्लम को समझने में, और कुछ आइडिया जनरेशन हो, कुछ इनोवेटिव चीज़ों को वो लाएं, और उसके बाद में जो आउटपुट होगा डेट विल बी द डिसीजन। सो ब्रेन स्टॉर्मिंग है कि किसी प्रॉब्लम को आपने एक ग्रुप के बीच में, अपनी जो मैनेजमेंट है उनके बीच में आपने डाल दिया, और उस पर वो जो अपना ब्रेन लगा रहे हैं, ऑल प्रोस एंड कॉन्स को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये डिसीजन लेते तो इसके ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये इनकी इम्पोर्टेंट क्वालिटीज हो सकती हैं। इन सब को डिस्कस करने के बाद दैट प्रोसेस इज नॉन एज, इसको डेवलप किया था ब्रेन स्टॉर्मिंग को बाय एलेक्स एफ Osborne। So brainstorming is the oldest and best known techniques for stimulating creative thinking। क्योंकि अब हर लोग अपना आइडिया देगा, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने आइडियाज को शेयर करेगा, और उसमें दूसरे जो पर्सन्स हैं उसमें उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसलिए ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ही ओल्डेस्ट है और बहुत अच्छी टेक्निक्स में एक मानी जाती है ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस। आपने बहुत बार सुना होगा। It involved the use of groups whose members is presented with a problem and is asked to develop as many potential solution as possible। जैसे मैंने कहा कि कोई प्रॉब्लम उन सबके बीच में रख दी और उसमें उन लोगों ने डिस्कस किया, सब लोगों ने अपने आइडियाज दिए, उसके बाद में जो बेस्ट चीज डेवलप करके आई
जो बेस्ट सॉल्यूशंस निकल के आया, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। मेंबर्स ऑफ ग्रुप में ऑल बी एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय हो सकते हैं फर्म के, या बाहर से भी कोई लोग, आज जैसे हमने कहा कि एक्सपर्ट आप बुला सकते हैं पर्टिकुलर फील्ड में। सो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज बेस्ड ऑन द premises that when people interact in a free and uninhibited atmosphere, वो कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी डिस्कस करने के लिए स्वतंत्र हैं, बट यस विद इन द गिवन फ्रेमवर्क ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। मीन्स आप ब्रेन स्टॉर्मिंग में कोई अन्य से लड़ाई नहीं करेगा, सब चीज़ें हेल्दी डिस्कशन करेंगे, है ना, ये सब चीज़ें हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ देंगे और एक दूसरे से मोटिवेट करेंगे कुछ अच्छी चीज जनरेट करने के लिए। तो लेकिन ये इंटरेक्शन के बेस्ड है ब्रेन स्टॉर्मिंग। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस मैनी आइडियाज, क्योंकि जब ब्रेन स्टॉर्मिंग होंगी तो एक आइडिया नहीं, बहुत सारे आइडियाज जनरेट होते हैं, और उनमें से जो मैनेजर का काम है उसमें से बेस्ट आइडिया को चुनकर इम्प्लीमेंट करना। सो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज अ प्रोसेस टू जनरेट द न्यू आइडिया एज ए डिसीजन। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज गवर्न बाय 4 इंपॉर्टेंट रूल, 4 इंपॉर्टेंट रूल। जैसे मैंने कहा, क्रिटिसिज्म नहीं करना है किसी का भी, या अपना जजमेंट नहीं सुनाना है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, नो। फ्री विलिंग नहीं करना है, सॉरी, फ्री विलिंग इज वेलकम। अगर कोई भी अच्छा आइडिया आ रहा है तो ऑलवेज वेलकम है, और जो आइडिया है, जो भी जितने भी आइडिया से बेटर आइडिया, उसको बनाने के लिए हेल्प करें, ना कि उसको टेम डाउन करें या उसको एक तरह से करें नो 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 इट इज नॉट गुड, या ये आइडिया है तो अच्छा बट ये इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। उस पर डिस्कस करके उसको वेलकम करें। क्वांटिटी इज वांटेड, द ग्रेटर द नंबर ऑफ आइडियाज, यानी जितने आइडियाज हमें मिले उतना अच्छा है, ताकि हम उसमें से बेस्ट चूज कर सकें। और कई बार क्या होता है कि 2 डिफरेंट आइडियाज को जोड़ करके भी एक हम बेस्ट आइडिया बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन एंड इम्प्रूवमेंट आर साउट इन एडिशन टू कंट्रीब्यूटिंग आइडियाज ऑफ देयर ऑन ग्रुप मेंबर सजेस्ट हाउ आइडियाज ऑफ अदर्स कैन बी इम्प्रूव्ड। सो 4 इंपॉर्टेंट रूल हैं जो ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें 50 से 60 लोग हो, ये तो चूंकि पर्सन टू पर्सन और कंपनी टू कंपनी, ये कहीं पे आपने देखा होगा कि 30 मिनट में ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, कहीं 1 घंटे में, कहीं 2 घंटे में, कहीं 10 मेंबर ब्रेन स्टॉर्मिंग में इन्वॉल्व हैं, कहीं 20 मेंबर्स इन्वॉल्वमेंट से फैक्ट्री टू फैक्ट्री, फर्म टू फर्म ये डिफर करेगा। जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग से यूजुअली इन्वॉल्व 6 to 8 पार्टिसिपेंट्स। अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए 6 से 8 पार्टिसिपेंट्स, एम्प्लॉय, वर्कर्स, मैनेजमेंट वर्कर्स, और 1 आध घंटे के लिए डिस्कस किया। लेकिन कुछ ऐसी भी इश्यूज हैं जहां लॉन्ग डिस्कशन की जरूरत हो जाती है, जैसे एयरफोर्स है या सेंट्रल स्टेट, इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ बहुत लंबा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस हो सकता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग हाउएवर इज नॉट विदाउट लिमिटेशन, चूंकि इसके कोई लिमिटेशंस नहीं, जब तक सेट ऑफ आइडियाज कलेक्ट ना हो या आउटपुट बेस्ड अगर कोई आइडियाज ना मिले, तब तक वो डिस्कशन चलता रहेगा। साइनेटिक्स ये भी एक प्रोसेस है, ये विलियम जे जॉर्डन ने किया था, एंड ये मोर रिसेंट है। अभी हम लोग आजकल इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रिएटिविटी टेक्निक्स है फॉर द जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। The term cynetics is derived from Greek word meaning the fitting together of the diverse element. Diverse element में कोई चीज क्या, एक अच्छी चीज फिट करना, वो इसका जो ग्रीक मीनिंग है। The basic intent of cynetics is to stimulate novel and even bizarre alternatives through the joining together of distinct and apparently irrelevant ideas. कई बार क्या होता है कि कोई भी आइडियाज को हम लोग इररेलेवेंट समझते हैं, नो। सो बेस्ट आइडिया चुनने का ये रिसेंट वे है, दैट इज साइनेटिक्स। मेंबर ऑफ साइनेटिक्स ग्रुप्स आर टिपिकली सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट ए वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड। जैसे आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग में देखा वो सेम ग्रुप से लेंगे, यहाँ सेम ग्रुप से नहीं, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेंगे, ताकि वो एक ऐसा डिस्कशन हो जिसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हों। अगर एक जैसा ग्रुप होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें छूटने की संभावना है।
तो ये एक तरह का है तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसा है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसमें वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स पीपल होंगे। एक है नॉमिनल ग्रुपिंग, ये एंड्रू डेलबैक ने किया था और एंड्रू वैन डे वैन ने किया, दो लोगों ने मिलकर। नॉमिनल ग्रुपिंग डिफर्स फ्रॉम द बोथ, ये दोनों से डिफर है, ब्रेन स्टॉर्मिंग से भी एंड साइंटिफिक से भी, इन टू इम्पॉर्टेंट वे। नॉमिनल ग्रुपिंग डज नॉट रिलाई ऑन फ्री एसोसिएशन ऑफ आइडिया, इसमें फ्री एसोसिएशन नहीं होगा, मतलब आप ऐसे नहीं फ्रीली कुछ भी बोल रहे हैं। एंड इट इज प्रॉपरली अटेम्प्ट टू रिड्यूस वर्बल इंट्रैक्शन, यानी इसमें वर्बल नहीं बोलना है, वर्बल इंट्रैक्शन नहीं होगा। फॉर्म दिस लेटर कैरेक्टरिस्टिक ए नॉमिनल ग्रुप डराइव इट्स नेम, इट इज ए ग्रुप इन नेम ओनली, यानी कि बेसिकली नॉमिनल ग्रुपिंग हैज बीन फाउंड टू be particularly effective in situations requiring a high degree of innovation of idea generation. It is generally follow a high structured procedure involving the following strategy and following steps. तो किस तरह से डिफरेंट है ये? 7 to 10 individuals with different backgrounds and trainings are brought together and familiarized with the selected problems, such as what alternatives are available for achieving the set of objectives. सो पहले तो हम लोग 8-10 लोग इकट्ठा करेंगे डिफरेंट बैकग्राउंड से, हालांकि ये साइनेटेक्स में भी था, लेकिन इसमें कुछ और भी चीज है। ईच ग्रुप मेंबर इज आस्क्ड टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ आइडियाज इन रेस्पॉन्स टू द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स, यहाँ उनको लिख करके देना है। यहाँ वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, वर्किंग साइलेंटली अराउंड, उनको जगह अपना अलग अलग लोकेशंस दी जाएंगी और उन लोकेशंस अपने अपनी लोकेशन से बैठ करके अपने आइडियाज की लिस्ट बनाएं। After the period of 10 to 15 minutes, group members share their ideas at one time in round robin manner, यानी कि फिर अपने अपने जो उन्होंने आइडियाज जनरेट किए हैं वो सब उनको रीड आउट करते हैं और अपनी अपनी बातें वो कहते हैं कौन कौन से आइडिया, और लेकिन उन सबके जो भी डिस्कशन हो रहा है उस सबको रिकॉर्ड किया जाता है, उसमें जो बेस्ट आइडियाज हैं उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। द पीरियड ऑफ स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस फॉलो इन द ग्रुप मेंबर्स ओपनली डिस्कस एंड इवेल्युएट ईच रिकॉर्ड, जो आइडिया रिकॉर्ड किए हैं उन पर फिर प्रॉपर डिस्कशन होता है। और उसके बाद में अगर कोई आइडियाज बनते हैं फिर बाद में वोटिंग होती है कि किसी आइडिया के लिए 8 में से 10 में से कितने कितने वोट मिले हैं। तो ये एक 5 स्टेज हैं नॉमिनल ग्रुपिंग में। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। देयर आर मैनी वेज ऑफ सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन, हालांकि क्रिएटिव थिंकिंग को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ओपनली किसी भी प्रॉब्लम्स को जान करके उसके बारे में सोचना, उसके बारे में अपनी राय देना, उसके बारे में अपनी लेकिन यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग में इंडिविजुअली अपनी राय देता है और बाद में वो ग्रुप करके क्लब करके वो एक सेट ऑफ क्या बोलते हैं डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन सकता है वो। आगे क्या है इसके, नेक्स्ट क्या है, या ये बताया सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेट, जब बहुत सारे आइडियाज आते हैं उसमें से एक बेस्ट 1 बेस्ट और 2 बेस्ट आइडियाज हम लोग सेलेक्ट करते हैं और बाद में उनको प्लान बी के रूप में यूज करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन और डिसीजन, जैसे अगर आपने कुछ डिसीजंस कुछ आइडियाज आपने सेलेक्ट किए, फिर उनको आप अपनी कंपनी में अपनी फर्म में उनको आप एज ए मैनेजर उनको डिसीजन मेकर के रूप में उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये आपका डिसीजन मेकिंग का पार्ट हो गया। इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप डिसीजन मेकिंग, कई बार क्या होता है कि सिंपल एग्जांपल से समझ लीजिए, किसी कंपनी में एक मैनेजर एज ए इंडिविजुअल कुछ डिसीजन लेता है तो दैट इज नॉन एज इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। लेकिन कई बार ग्रुप डिसीजन मेकिंग भी होती है, मीन्स एक कंपनी ऐसी जगह काम कर रही है जहां पर मैनेजमेंट के टॉप मैनेजर का डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ जो स्टेट पॉलिसीज हैं स्टेट डिसीजंस हैं वो भी इम्प्लीमेंट होते हैं और साथ ही साथ सेंट्रल डिसीजंस भी इम्प्लीमेंट होते हैं। तो वो ग्रुप डिसीजन में आते हैं अगर एक साथ बहुत सारे डिसीजंस इम्प्लीमेंट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर फर्म में। ये इसी के बारे में है। ओवरकमिंग बैरियर्स टू इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग,
जैसे बैरियर्स क्या हो सकते थे, वो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकली, ये सब बैरियर्स हैं, इनको किस तरह से ओवरकम करेंगे डिसीजन मेकिंग में, ये सब वही है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। Elibing 1978 identified several roadmaps and that can impede manager effectiveness in arriving at the most suitable decision. The tendency to evaluate before one investigates, early evaluation process, inquiry into the fuller understanding of situation, ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं कि किस तरह से उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। पहले तो हम इवेल्युएट करें चीज़ों को, कोई भी डिसीजन इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद में पुराने एक्सपीरियंस को हम लोग ध्यान में रखें, और जो अवेलेबल हैं हमारे पास चीज़ें, उनका डिसीजन मेकिंग में किस तरह से रोल होगा एज ए असिस्टिंग द decisions for the better output and better profits, ये सब चीजें इसके बारे में बात की। एक सेकंड, एक फोन है। यस, अगर हम बात करें कि ग्रुप डिसीजंस में होते हैं, तो ग्रुप लीडर्स जो होते हैं, यानी कि जो, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे चीजें हैं जो एक कंपनी में इम्प्लीमेंट होनी एक साथ, तो ग्रुप लीडर्स कैन एनकरेज ईच मेंबर्स टू बी ए क्रिटिकल इवेल्युएटर ऑफ, यानी कि जो डिफरेंट चीजें आ रही हैं उनको पहले इवेल्युएट करें और अपनी फर्म में एक साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये एक टॉप मैनेजमेंट का काम है कि उन सब चीज़ों को बहुत ही साइलेंटली और बहुत ही एक तरह से कंडूसिव माहौल में इन सब चीज़ों को लेके आए, ताकि वो उनको एक बर्डन के रूप में ना लगे। तो ये सब आपके ग्रुप डिसीजंस एंड इंडिविजुअल डिसीजंस के बारे में है। नेक्स्ट यूनिट चूंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यस, तो अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, डिसीजन मेकिंग पढ़ी, किस तरह से पॉलिसी फ्रेम होती हैं, क्या स्ट्रेटजी होती हैं, क्या गोल्स एंड क्या मिशंस। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है, और वहाँ मैनेजमेंट के कुछ इथॉस होते हैं, उनकी कुछ बेसिक एथिक्स हैं दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्या है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है कल्चर। किसी भी फर्म का एक कल्चर होता है, उसको आप क्लाइमेट कहिए, कल्चर कहिए, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और फिर डायमेंशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के। अगर हम उसको कल्चर को अगर हम ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ दें, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, और ये हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की। इफ़ यू टॉक द मैनेजरल थिंग्स, तो मैनेजरल कुछ वैल्यूज होती हैं, इथिक्स होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इन दोनों चीज़ों को हम पढ़ने जा रहे हैं, इनको डिस्कस करते हैं। एक मिनट में करते हैं।
यस, सो ऑर्गेनाइजेशन की बात की हमने, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कल्चर होता है उसको ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कहते हैं या उसको ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट कहते हैं। हालांकि ये एक एनवायरनमेंट का एक शॉर्ट है कि किसी कंपनी का जो एनवायरनमेंट है उसका एक पार्ट है कल्चर, कि उसमें किस तरह के कल्चर में बहुत सारी चीज़ आती हैं। किसी फैक्ट्री में किस तरह से ड्रेसअप होना है, किस तरह से कितने टाइम से किस टाइम में आना है, और किस डिसिप्लिन भी कल्चर का पार्ट है, और पर्टिकुलर एजुकेशनल और ट्रेनिंग, ये सब उस कल्चर का पार्ट है कि उस कंपनी में इतने एजुकेटेड लोग हैं, इतने ट्रेंड लोग हैं और इस पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेंड हैं, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का पार्ट है। लेकिन अगर हम सिंपल वे में if हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या ना करें, अगर हम कल्चर या क्लाइमेट को समझें, every organization has some characteristics which are common with any other organization। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज़ें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है। एट द सेम टाइम ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स यूनिक सेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टी। जैसे मैंने कहा कि किसी पर्टिकुलर कंपनी की जो ड्रेसिंग सेंस है वो अलग है, तो वो उसका कल्चर है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी प्रॉपर्टीज है। दिस साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर सब यूनिट इज यूजुअली रेफर्ड एज टू ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कल्चर उस पर्टिकुलर कंपनी फर्म की यूनिकनेस है, एंड दैट यूनिकनेस मे बी इन टर्म ऑफ ड्रेसिंग, इन टर्म ऑफ देयर एटिक्यूट्स, इन टर्म ऑफ देयर लेवल ऑफ एजुकेशन, इन टर्म ऑफ देयर स्पेसिफिक ट्रेनिंग। सो वो उसका एक कल्चर होगा। सपोज करिए कोई कंपनी आईटी कंपनी है, तो वो उसका एक कल्चर है, उसमें कल्चर आईटी से रिलेटेड है। सपोज करिए अगर कोई सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उसका जो लेबर बहुत ज़्यादा होगा, वो दैट मे नॉट बी वेल क्वालिफाइड, दैट मे नॉट बी वेल ट्रेंड, तो वो उस पर्टिकुलर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है। फॉर ए लेमैन कल्चर इज कॉमनली एक्सपीरियंस फिनोमिनन एंड मैनी वर्ड्स लाइक क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, में इसको कई बार एटमॉस्फेयर ही बोल लेते हैं, हम एनवायरनमेंट बोल लेते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें एक तरह से क्लाइमेट और कल्चर का सिनोनियम्स हैं एक लेमैन के लिए। जैसे हमने कहा कि उसके लिए ड्रेसिंग है, उसकी ये मैं बहुत बार यूज करता हूँ, तो ये सब क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इज रिलेटिवली एंडूरिंग क्वालिटी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, दैट इज, ये इंटरनल ही है, चूंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट की बात करते हैं दैट इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी उसकी क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंटरनल एनवायरनमेंट में ही आएंगी, और वो उसी को इन्फ्लुएंस करेंगी। जो और भी ज्वाइन करेंगे, वो जो क्लाइमेट है, वो जो न्यू कमर्स आ रहा है उसको भी इन्फ्लुएंस करेगा कि वो भी उसी तरह से बिहेव करे। Organization climate is a set of characteristics that describe an organization। जो क्लाइमेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की एक तरह से पहचान होती है, और वो उस ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करता है कि यस, मैंने कहा ना, जैसे अगर सारे कंपनी वाले लोग अगर आईटी क्वालिफाइड हैं, तो हम कहेंगे कि वो एक आईटी कंपनी, जहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड काम हो रहा है, तो वहाँ हम कहेंगे कि वो कंपनी कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, वो आईटी है। तो यानी कि वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन दिस क्लाइमेट। नेक्स्ट है परसीव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर एंड क्लाइमेट। ये भी थ्योरेटिकल है, क्योंकि और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चर और क्लाइमेट अगर आप देखें, तो वैसे तो सिंपल डेफिनेशंस देखेंगे तो वो बिल्कुल सेम सा ही लगेगा, कॉमन सा ही लगेगा। लेकिन culture and operational concept of climate basically refer to the perceived personality of organization in very much and the same sense of individual have personality. Just as you have a personality, a set of relatively stable traits, so does an organization. Just any culture has some do and don't in the form of totem and taboo, which dictate how each member should behave with the fellow members. So basically इसमें अगर हम जाने, दोनों में एक होती है, हालांकि मैंने कहा कि दोनों कल्चर एंड क्लाइमेट लगभग सेम है, लेकिन कल्चर कहीं ना कहीं पर्सन के बिहेवियर से, पर्सन के एटिक्यूट से
पर्सन की नॉलेज के साथ जुड़ जाता है। एंड क्लाइमेट ओवरऑल उसका आउटपुट को एक तरह से बात करता है कि उस तरह का क्लाइमेट है वहाँ पे। यहाँ क्लाइमेट में एटमॉस्फेरिक चीज़ भी आ जाती है, एनवायरमेंटल चीज़ भी आ जाती है, लेकिन कल्चरल में द बिहेव ऑफ द पर्सन, बिहेव ऑफ द एम्प्लॉय, वो आपका कल्चर का पार्ट होता है। और अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक है, श्रिंक है, दैट बिकम्स ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। कुछ डायमेंशंस हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की। कौन कौन सी डायमेंशन? इंडिविजुअल ऑटोनॉमी देता है, पोजीशन स्ट्रक्चर्स है, रिवार्ड ओरिएंटेशन है, कंसिडरेशन वार्म एंड सपोर्ट है, कॉन्फ्लिक्ट को भी प्रोग्रेसिवनेस एंड डेवलपमेंट है, रिस्क टेकिंग है, कंट्रोल है। तो ये 8 डायमेंशंस हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को डिफाइन करती हैं। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी मीन्स कि जो भी इंडिविजुअल उसमें काम कर रहा है एक पर्टिकुलर कल्चर में, वो फ्रीडम है टू एक्सरसाइज हिज हर रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको फ्रीडम दी गई है। सो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी दी जाती है आपके ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में। लेकिन वो और जो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है, फ्रीडम है, दैट इज विद इन द फ्रेमवर्क, वो एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के बीच में ही आपको उनको ऑटोनॉमी है। पोजीशन स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे आपने कहा कोई सुपरविजन स्ट्रक्चर में होगा, कोई डाउन द लाइन स्ट्रक्चर में होगा, कोई लेबर के रूप में होगा, कोई मॉनिटर के रूप में होगा, यानी कि जॉब से रिकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होंगी एज पर ऑब्जेक्टिव्स। रिवार्ड्स, वो कल्चर का पार्ट है कि अगर कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो उसको रिवार्ड्स मिलेगा या उसको इंसेंटिव मिलेगा, ये भी एक कल्चर को रिप्रेजेंट कर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ कंसिडरेशन भी होता है, एक पर्टिकुलर कल्चर में एक कंसिडरेशन होता है कि ये आदमी अच्छा काम कर रहा है, इसको जल्दी प्रमोट किया जाए, सबके साथ अच्छा व्यवहार, और उनको एक सपोर्ट मिलती है कल्चर में, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में, कि अगर किसी को बहुत सारी इमरजेंसीज आती हैं तो उन सबको में सपोर्ट भी मिलता है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में है तो। यानी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का पार्ट है कि वहाँ सपोर्ट सबको मिले, जैसे मेडिकल सपोर्ट है और बहुत सारी सपोर्ट हैं, अगर किसी का लोन सुविधाएं हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का पार्ट है। कॉन्फ्लिक्ट वो विद इन द, उसी में सॉल्व होना है, इस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का पार्ट है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बाहर नहीं जाना चाहिए। हमेशा प्रोग्रेसिवनेस की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, वो एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिस्क टेकिंग, अगर कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को वहाँ बिल्डअप हुआ है तो सब लोग रिस्क इसलिए लेंगे क्योंकि मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकें। तो रिस्क लेने की अगर किसी में किसी, वो भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का। कोई रिस्क लेता है कोई कंपनी स्ट्रक्चर, कोई नहीं लेता है, तो ये उसका पार्ट है। एक आपका कंट्रोल है, यानी कि जो ओवरऑल कंट्रोल है वो किसके हाथ में रहेगा, कैसे रहेगा, लो कंट्रोल है, हाई कंट्रोल है, किस तरह चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं, तो ये टाइटनेस है या बहुत ज़्यादा लूजनेस है, वो भी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, तो बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स में बहुत सारे पार्ट, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को। So, at the very onset of this topic, it is useful to distinguish between determinants and dimensions of organizational culture. Determinants are the causes, while dimensions are the component of organizational character, organizational culture. You may say determinants are those which influence, whereas dimensions are those which are influenced. जो आपके जो डिटर्मिनेंट्स, जैसे मैंने कहा कि ये डिटर्मिनेंट्स किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ये करते हैं आपके जो कॉजेज, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में कौन कौन से कॉजेज हैं, किस तरह से इफेक्ट होता है, इसके बारे में। जैसे इकोनॉमिक कंडीशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, लीडरशिप स्टाइल कैसी है, यूनिटरी है या एक तरह से मॉनिटरिंग में है, किस तरह की पॉलिसीज हैं, मैनेजर वैल्यू क्या है, उनके इथोस क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन साइज छोटा है बड़ा है। तो ये 7 कंपोनेंट बेसिकली डिटर्मिनेंट्स के रूप में काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के।
मीन्स हमने बताया इकोनॉमिक कंडीशन मीन्स कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, उसका टोटल फ्लो, लीडरशिप स्टाइल, कैसी लीडरशिप स्टाइल है, और किस तरह की पॉलिसीज हैं। पॉलिसीज हम जो है, अगर वो आपका जो टारगेट ग्रुप के सेंटर्ड हैं उनके मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के लिए हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के एक तरह से रिप्रेजेंट करता है डिटरमिनेंट के रूप में। ये तीन तरह की, देखिए तीन तरह के एक ये थे लीडरशिप स्टाइल, कौन कौन से डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के होंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन बी है, ये तीन ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने डिफ्रेंशिएट करा है कि किस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैन नॉट बी सेम ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑन ऑल फर्म्स। अब एक चीज़ है मैनेजरल वैल्यू, हालांकि इसको हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि एक मैनेजरल पोलाइट होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए, वैल्यू उसमें कुछ डिसीजन मेकिंग की वैल्यू होनी चाहिए, ये सब भी मैनेजर वैल्यू के अंडर में आती हैं। ऑथोरेटिव है, कंसल्टिव है, पार्टिसिपेटेड है, ये सारी की सारी आपकी मैनेजर वैल्यू की पार्ट है ये। सॉरी, देखिए मैनेजर वैल्यू तो जो मैंने बताया कि वो ऑथोरिटेरियन है, सिंपल है, पार्टिसिपेटेड है, लेकिन इसके साथ साथ जो इथॉस हैं उसमें कुछ एक और चीज जुड़ जाती है, जैसे ऑटोनॉमी, इक्विटी, सिक्योरिटी एंड अपॉर्चुनिटी। ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मैनेजरल इथॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि हर मैनेजमेंट में, हर मैनेजर में ये चार क्वालिटी होनी जरूरी हैं। ऑटोनॉमी प्रोवाइड करे सबको, सबको इक्विटी प्रोवाइड करे, सबको सिक्योरिटी दे, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। अगर ये चारों चीज़ें हैं किसी भी मैनेजर में, तो हम कहेंगे कि वो मैनेजर में, तो मैनेजर इथॉस उस कंपनी में, उस फर्म में, उस ऑर्गेनाइजेशन में होल्ड करता है मैनेजर, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फर्दर जो आपका जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर सकता है। क्योंकि वहाँ के अगर ऑटोनॉमी होगी, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे, तो सब लोग फ्रीली काम कर सकेंगे और बेस्ट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट सारे एम्प्लॉयज को मिलेगा। सबको इक्विटी मिलेगी तो डेफिनेटली दैट विल आल्सो वर्क एज मोटिवेट। सबको सिक्योरिटी में वो भी आ जाती है आपकी जो फैसिलिटीज, डिफरेंट फैसिलिटीज हैं, मेडिकल हैं और बहुत सारी जो फैसिलिटीज हैं, दैट कम्स अंडर द सिक्योरिटी। अपॉर्चुनिटी, यू आर अवेयर कि सबको अपॉर्चुनिटी दो, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को अपॉर्चुनिटी दिए जा रहे हैं, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, तो इथॉस में आती हैं ये सारी चीजें। मैनेजरल इथॉक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे एक्शन गोल ओरिएंटेशन। अगर चारों चीज एक साथ जुड़ गई हैं, ऑटोनॉमी भी जुड़ गई है, इक्विटी भी जुड़ गई है, अगर ये सारी चीजें जुड़ जाती हैं, तो फिर जो भी एक्शंस होंगे वो गोल ओरिएंटेड होंगे, यानी कि सब लोग एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। ये मैनेजर इथॉक्स के बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में आती है। और सब लोग प्रोएक्टिव होंगे और एक इंटरनल रिसोर्स के रूप में काम करेंगे। सबका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होगा, क्योंकि जब सबको बराबर समानता का अधिकार मिलेगा, सब लोग एकजुट काम करेंगे, एक ही गोल के लिए काम करेंगे, तो सबका प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो उस पर ज़्यादा ध्यान होगा, ताकि हमारी कंपनी को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट बेस्ट आउटपुट मिल सके। तो यही था आज का, थोड़ा सा चूंकि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल था। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हैं देन यू मे आस्क। कल मैनेजमेंट से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज विल बी ब्लॉक नंबर 3। So anybody have any query, any problem, any issue? No question, sir. Thank you. So we will meet tomorrow. Thank you and have a good night. Good night, sir. Yeah.